आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे बीजेटी। बीजेटी मीन्स बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, सो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, व्हाई इट इज़ कॉल्ड बाईपोलर। ओके, व्हाई इट इज़ कॉल्ड बाईपोलर एंड जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, अभी तक जो भी हम लोगों ने देखा वो हम लोगों ने देखा था डायोड्स को। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं ट्रांजिस्टर पर। तो इस आपको ये देखिए, ये जो सर्किट है, ये जो आपको डायग्राम यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये एक तरीके से बीजेटी का डायग्राम है। ठीक है, सो हाउ मेनी लेयर्स इट इज़ हैविंग, हाउ मेनी लेयर्स इट इज़ हैविंग, इट इज़ हैविंग वन लेयर ऑफ एमिटर, one layer of base and one layer of collector. So how many layers it will have? It will have 3 layers. It is a 3-layer device. Okay, so how many junctions it will have? How many P and N type junctions will be formed? There will be a junction here. This will be emitter base junction, and another junction will be here. This will be what? This will be collector base junction. So how many junctions are here? Here are 2 junctions. 2 junctions are here. Okay, what is these? These are emitter base junction, emitter base junction, and another one is collector base junction. Okay, so it may be called as EB junction and it also may be called as CB junction. So what is 3 layers? These 3 layers are emitter, and then after you can see here is a base, and at the last here is a collector. Okay, so this is how we can say that BJT is a 3-layer device. It will have 2 junctions. Okay, how many terminals it will have? Terminal. So terminal, how many terminals it will have? Terminal means just like as in diode we were having 2 terminals, one was P, another was N. How many layers we were having? We were having 2 layers, one was of P type, another one was of N type. So in this particular BJT, how many terminals we will have? We will have 3 terminals, and these 3 terminals are, these are 3 terminal metallic terminal. These are emitter, emitter से एक terminal connected होगा, this will be called emitter node. Then after base से एक terminal connected होगा, that will be called base, and फिर collector से एक terminal connected होगा, that will be called collector. Okay, so till now we have concluded that BJT is a 3-layer 2 junction 3 terminal device. Okay, so still we are missing the term bipolar. What does this mean, bipolar? So bipolar means how many type of charge carrier we have. So we have, there are 2 different type of charge carriers. One is free electron is the charge carrier, and another one is a hole is a charge carrier. Okay, there are 2 type of charge carrier. One is free electron, another one is hole. तो फ्री इलेक्ट्रॉन के केस में हम लोग ने देखा कि कैसे जनरेट होता है। जब भी कंडक्शन बैंड जो होता है, जो भी कंडक्शन बैंड में जब भी हम लोग वैलेंस बैंड में एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन जंप ऑफ करके कंडक्शन बैंड में जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। मीन्स filled state in conduction band is called free electron, and vacant state in valence band is called hole. So both of these are charge carrier. This particular charge carrier will have charge plus E, and this particular charge carrier will have charge minus, sorry, उल्टा हो गया। This particular charge carrier free electron will have charge minus E, and hole will have charge plus E. Okay, तो जो BJT में करंट फ्लो करती है वो दोनों ही चार्ज कैरियर्स के नाते फ्लो करती है। मीन्स BJT में जो भी करंट फ्लो करेगी वो निगेटिव वाले चार्ज कैरियर के नाते भी फ्लो करेगी, पॉजिटिव वाले चार्ज कैरियर के नाते भी फ्लो करेगी। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं बाईपोलर डिवाइस। Bipolar device means a device in which current will flow due to both kind of the charge carrier. This device will be called bipolar device. So BJT is a bipolar device. Why it is a bipolar device? Because in BJT current will flow due to both charge carriers, electron, free electron as well as hole. Okay, तो सर डायोड कैसा टाइप का डिवाइस था? डायोड was also a bipolar device because वहाँ पर जो I नॉट था वो I नॉट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के नाते फ्लो करता था, और I नॉट e टू द पावर ऑफ Vd अपॉन ईटा Vt, ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वाली करंट थी ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के नाते फ्लो करती थी। ठीक है, तो वहां पर भी जो एक तरीके से डायोड भी आप कहोगे, दैट वाज आल्सो अ बाइपोलर डिवाइस, बट इट इज स्पेसिफिकली बाइपोलर डिवाइस बिकॉज यहाँ पर जो भी है साफ साफ करंट में कंट्रीब्यूशन दिखेगा कि कौन कौन सा करंट किसके नाते आ रहा है। ओके, अब आते हैं तीनों लेयर्स के बारे में। एमिटर का क्या काम है? एमिटर का काम है ढेर सारे चार्ज कैरियर्स जनरेट करना। ठीक है, बेस का क्या काम है? बेस का काम ये है
कि उन चार्ज कैरियर्स को अपने अंदर कुछ कंज्यूम करना और फिर कलेक्टर तक पास करना। मतलब एमिटर से कोई भी चार्ज कैरियर बेस से होता हुआ कलेक्टर पर पहुंचेगा और कलेक्टर पर कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से जो एमिटर, आप देखिए अब बेसिस, इन तीनों टाइप के बेसिस पे, तीनों लेयर के बेसिस पे दो टाइप के बीजेटी फॉर्म हो सकते हैं। एक आपका हो सकता है अगर हमने एमिटर को एन टाइप का बना दिया, बेस को पी टाइप का बना दिया, कलेक्टर को एन टाइप का बना दिया, देन इट विल बी एन पी एन टाइप ऑफ द ट्रांजिस्टर और एन पी एन टाइप ऑफ द बीजेटी बेस्ड अपॉन कंस्ट्रक्शन। और अगर हमने एमिटर को पी टाइप का बना दिया, अगर हमने एमिटर को किस टाइप का बना दिया, एमिटर को पी टाइप का बना दिया, ठीक है, और हमने बेस को क्या बना दिया, बेस को एन टाइप का बना दिया, और कलेक्टर को हमने क्या बना दिया, पी टाइप का बना दिया, देन इट विल रिजल्ट, व्हाट इट विल रिजल्ट, PNP type of the transistor. So we will have, there are two type of the BJT based upon construction or layers we are having. One is NPN and another one is PNP. Okay, so ये just alternate होगा. Okay, N means there will be pentavalent doping. What will be majority charge carriers? Free electrons will be majority charge carrier. What will be minority charge carrier? Holes will be minority charge carrier. Okay, and in P there will be a trivalent impurity, and due to this trivalent impurity, what will happen? Due to this trivalent impurity, there will be majority charge carriers of hole, and free electrons will be in minority charge carrier. Okay, so based upon this BJT can be constructed of two type. अब आते हैं अलग अलग टर्मिनल्स की बात करते हैं कि अलग अलग टर्मिनल्स जो ये हमने बनाया वो उसका क्या नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एमिटर है, ये एमिटर जो है वो एमिटर मस्ट बी हाईली डोप्ड। हाईली डोप्ड मीन्स जब इसकी डोपिंग ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली इसमें मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे, मोर चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे। ओके, तो यहाँ पर चार्ज कैरियर खूब ढेर सारे जनरेट होंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एमिटर की डोपिंग कैसे करते हैं, हाईली डोप करते हैं, ठीक है। पी टाइप में फिर यहाँ पर बेस आता है तो बेस तो अपोजिटली डोप्ड होता है, ठीक है ना, तो इसकी डोपिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और कलेक्टर जो होता है, शुड बी द कलेक्टर, कलेक्टर जो होता है वो लाइटली डोप्ड होना चाहिए, लाइटली डोप्ड, ठीक है। कलेक्टर जो है वो लाइटली डोप्ड होना चाहिए। ओके, कलेक्टर मस्ट बी लाइटली डोप्ड। ओके, और एरिया वाइज अगर हम लोग कहें तो एरिया वाइज कलेक्टर को सब कुछ कलेक्ट करना है तो इट्स एरिया शुड बी मैक्सिमम। तो एरिया जो है वो इसका क्या होना चाहिए, इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। बेस का क्या होगा, बेस का लेस होगा, मिनिमम होगा, ठीक है ना। और इसका क्या होगा, इसका मीडियम होगा। तो इस तरीके से एमिटर का काम क्या है, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को जनरेट करना। बेस का काम क्या है, उन चार्ज कैरियर्स को पास करना कलेक्टर तक। और कलेक्टर का काम क्या है, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो कि एमिटर से जनरेट हो रहे हैं और बेस के थ्रू पास होकर के आ रहे हैं उनको अपने पास कलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो दीज आर 3 लेयर्स और इसके बेसिस पर यहाँ पर अलग अलग इसके बेसिस पर आप यहाँ पर अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं क्या होगा एमिटर, क्या होगा बेस और क्या होगा कलेक्टर, ठीक है ना। तो एमिटर से जो करंट निकलती है उसे हम लोग एमिटर करंट कहते हैं, बेस से जो करंट निकलती है उसे हम लोग बेस करंट कहते हैं, और कलेक्टर से जो करंट निकलती है दैट इज कॉल्ड कलेक्टर करंट। ओके, ये देखिए जब डिवाइस फैब्रिकेट होती है तो ऐसे तो फैब्रिकेट नहीं होती है, डिवाइस फैब्रिकेट होती है एक वेफर पे। वेफर क्या सा होता है, वेफर मतलब एक तरीके से लेयर होती है, एक तरीके से ये सिलेंड्रिकल लेयर अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस तरीके से ऐसे एक सिलेंड्रिकल लेयर होती है, ठीक है। एक तरीके से बहुत पतली सी सिलेंड्रिकल स्लाइस होती है, ठीक। उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा होता है। तो कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले हम लोग इसमें खूब ज़्यादा बम्बार्डमेंट करेंगे। किसकी बम्बार्डमेंट करेंगे, हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ की बम्बार्डमेंट करेंगे। जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ की बम्बार्डमेंट करेंगे तो ये पूरा का पूरा किस टाइप का हो जाएगा, एन टाइप का हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करेंगे बीच में, ठीक, और उसमें किसकी बम्बार्डमेंट करेंगे, फिर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ की बम्बार्डमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो फिर ये पी टाइप का हो जाएगा, ठीक। और फिर ऐसे ही बीच में फिर जो है इन्वर्जन करेंगे और फिर इस वाले लेयर में ही केवल बाकी को मास्किंग कर देंगे, बाकी को रोक देंगे, ठीक है। वो पूरा पूरा इस सब्जेक्ट है, पूरा पूरा मेथड है, कैसे आईसी बनती है वो बाद में समझिएगा। बस ये समझने की बात यह है कि जो लेयर बनती है वो एक तरीके से, जो डिवाइस बनती है, जो चिप बनती है वो इस तरीके से नहीं होती है। आप अगर देखोगे बीजेटी कभी भी देखोगे, मार्केट में लेने जाओगे तो इस तरीके से आपको बीजेटी मिलेगी। ये दिस इज बीजेटी, ओके। और यहाँ पर ऐसे 3 टर्मिनल ऐसे निकले रहेंगे, दिस इज काइंड ऑफ बीजेटी you will see in the market।
ओके तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो कैसे, मतलब सर ये तो आप तो जो पढ़ा रहे हैं तो आप ऐसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, और आप बता रहे हैं कि सर बीजेटी इस तरीके की मिलती है, ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन होता है, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होता है वो इस तरीके का होता है। और आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि जो आपके पास कलेक्टर के पास जो एरिया है, जो लेयर है वो मैक्सिमम है, ठीक है ना, बेस के पास मिनिमम है और एमिटर के पास जो है उसके पास मीडियम है। वहीं अगर आप कह सकते हैं n+ यहाँ पर होता है, n+ मीन्स डोपिंग जो होती है वो एमिटर टर्मिनल पर सबसे ज़्यादा होती है, बेस पर आप जो होती है मीडियम होनी चाहिए, ओके, और कलेक्टर पर सबसे कम डोपिंग होती है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है ये बीजेटी पूरा का पूरा काम करता है, ठीक। अब बेस्ड अपॉन दिस हम लोग बीजेटी के सिंबल पर आते हैं, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट बीजेटी, okay, how we can represent BJT. So we are having here NPN kind of a transistor, okay, this is N, this is P, and this is N. Now this is emitter, this is base, and this one is collector, okay, this is emitter, this one is base, and this one is collector, okay। तो NPN टाइप ये जो BJT बनता है वो कैसा बनता है, इसको देखिए इस तरीके से, ये जो होता है ना, ये टर्मिनल ऐसे एक लाइन बनाते हैं, दिस विल बी कॉल्ड बेस, और ये इस तरीके से बनता है। तो ये जो होता है एक तरीके से, ये जो इस तरीके से दिखाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि दिस इज़ नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है। अगर हम लोग इस तरीके से दिखा दें तो इसका मतलब ये होता है सिमेट्रिकल है दोनों साइड, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर सिमेट्री नहीं है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा एंगल पे दिखाते हैं, ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज टर्मिनल्स आर नॉट सिमेट्रिकल, ओके। हर चीज़ का मतलब होता है, ओके। तो और ये देखिए, तो ये जो होता है ना, ये वाला होता है, दिस वन इज बेस, दिस वन इज कलेक्टर, एंड दिस वन इज एमिटर। एमिटर वाले पर एरो रहेगी, विल हैव ए एरो एट एमिटर, ओके, एमिटर वाले पे एरो रहेगी, ठीक। तो ये देखिए, ये एरो अंदर की तरफ होगी कि बाहर की तरफ होगी, उसी से हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा है, ठीक है, ये NPN टाइप है कि PNP टाइप है, ओके। तो ये देखिए, ये इनकैप्सुलेटेड होता है, कहीं कहीं आप इसे इनकैप्सुलेट भी कर सकते हो। इनकैप्सुलेशन मतलब पैक्ड होता है भाई, ठीक है ना, जैसे ब्लैक कलर के या ग्लासी किसी भी चीज़ में पैक्ड होता है, ओके। आप इस इनकैप्सुलेशन में मत जाइएगा, नहीं तो फिर BJT आप बनाओगे वो BJT जैसा दिखेगा भी नहीं, ठीक। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली एक ऐसे लाइन खींचोगे, ठीक है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक है, और इस तरीके से फिर आप तीनों टर्मिनल्स को ऐसे कनेक्ट कर दोगे, ठीक है ना, और आप इसे कहोगे दिस वन इज बेस, दिस वन इज कलेक्टर, एंड दिस वन इज एमिटर, ठीक है। और एमिटर पे एरो आएगा, तो ये एरो अब अंदर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, उससे ये डिफाइन होगा कि किस टाइप का आपका BJT है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये आते हैं, ओके। ये देखिए, ये N टाइप ऑफ द ट्रांजिस्टर है। N टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर में क्या हो, सॉरी पहली लेयर बताइए, एमिटर पे लेयर कौन सी है, ये दिस वन इज एमिटर लेयर, ओके। तो एमिटर पर बताइए क्या है, देयर इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर N टाइप की डोपिंग है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर एमिटर से मूव करेगा कलेक्टर की तरफ, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एमिटर से कलेक्टर की तरफ, इसका मतलब जो करंट फ्लो करेगी वो फ्री इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। इसके नाते जो करंट फ्लो करेगी वो किधर की तरफ फ्लो करेगी, वो एमिटर से कलेक्टर नहीं, जबकि कलेक्टर से एमिटर की तरफ फ्लो करेगी। इसका मतलब जो करंट फ्लो करेगी वो बाहर की तरफ आती हुई दिखेगी, ओके। जो करंट फ्लो करेगी वो किधर की तरफ आती हुई दिखेगी, करंट जो फ्लो करेगी वो बाहर की तरफ आती हुई दिखेगी, ठीक। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एमिटर से जो करंट निकलेगी वो बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक। तो किसमें, NPN टाइप ऑफ द ट्रांजिस्टर में। तो NPN टाइप ऑफ द ट्रांजिस्टर में देखिए जो करंट है वो बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक। तो इस तरीके से ये जो ट्रांजिस्टर होगा दिस विल बी NPN टाइप ऑफ द ट्रांजिस्टर। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो एरो होगी वो इस तरीके से रहेगी। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एमिटर टर्मिनल से फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर बेस की तरफ होते हुए कलेक्टर की तरफ जाएगा, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन होगी वो एमिटर से बाहर की तरफ निकलती हुई होगी। तो इस तरीके से दिस विल रिप्रेजेंट NPN टाइप ऑफ द ट्रांजिस्टर। वैसे ही हम लोग अब देखते हैं PNP टाइप ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो देखिए भाई, ये हो गया, ये P हो गया, ये N हो गया, एंड ये P हो गया। नाउ दिस वन इज एमिटर, अनदर दिस वन इज बेस, अनदर दिस वन इज कलेक्टर, ओके। तो इस तरीके से ये हो गया एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं करंट कैसी रहेगी। ओके,
दिस वन इज बेस, दिस वन इज एमिटर एंड दिस वन इज कलेक्टर। ओके, अब देखिए ये जो है यहाँ पर ढेर सारे क्या हैं, होल्स हैं। होल्स, अब पी टाइप में भाई क्या जनरेट होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। चूंकि एमिटर वाला टर्मिनल पी टाइप का है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पर क्या जनरेट होंगे, हियर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल बी होल। सो होल विल मूव फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। व्हेन होल विल मूव फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर, नाउ व्हाट विल हैपन, द होल्स इज हैविंग पॉजिटिव चार्जेस, सो पॉजिटिव चार्ज विल मूव। तो इसलिए जो करंट की डायरेक्शन होगी दैट विल रिमेन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ कैरियर। तो करंट की भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी, तो करंट की भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन होगी, मतलब एमिटर पे जो करंट आपको लगेगी वो इस तरीके से अंदर आती हुई लगेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखोगे कि दिस इज, ये एमिटर पर इस तरीके से करंट अंदर आती हुई दिखेगी। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग पी टाइप ऑफ द ट्रांजिस्टर। ओके, ठीक। अब ऑन द बेसिस कि ये कौन सा बायसिंग है, कौन सा बायसिंग नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गए दो टाइप के ट्रांजिस्टर हो गए, ठीक है, दोनों टाइप के ऑफ ट्रांजिस्टर के सिंबल हो गए, दोनों टाइप ऑफ बीजेटी के सिंबल हो गए और बीजेटी के कुछ बेसिक्स हो गए। इसमें किसी को डाउट है तो कुछ पूछ सकते हैं आप। ओके, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, सिंबल क्लियर हो गया, किस किस टाइप से होता है ये भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो आपको पहले ही बताया कि बीजेटी 3 लेयर 3 टर्मिनल ओके बाईपोलर डिवाइस है। जंक्शन इसमें कौन कितने हैं, वी आर हैविंग 2 जंक्शंस हियर, वी आर हैविंग 2 जंक्शंस हियर। ओके, हाउ मेनी जंक्शंस वी आर हैविंग, वी आर हैविंग 2 जंक्शंस हियर। ठीक, तो जब यहाँ पर 2 जंक्शन हैं, जब यहाँ पर 2 जंक्शन है तो वो जंक्शन कौन कौन से हैं, एक तो सर एमिटर और बेस के बीच में बनता है और दूसरा कहाँ बनता है, दूसरा बनता है कि कलेक्टर और बेस के बीच में बनता है। सो वी आर हैविंग 2 जंक्शंस, वन जंक्शन इज फॉर्म्ड in between emitter and collector, another junction is formed between what, another junction is formed between, means here we can see that if we are having PNP type of the device, we are having PNP type of the device, sorry NPN type of the device, so this is N, this is P and this is N। आप इस तरीके से बना भी सकते हो। तो आप देखिए एमिटर पर जो भी आपका, आप देखिए एमिटर पर जो भी आपका एक तरीके से जो एरिया मैंने बनाया है वो मीडियम एरिया बनाया है, बेस पर सबसे कम बनाया है और कलेक्टर पर मैंने सबसे ज़्यादा बनाया है। यहाँ पर क्या बनाएंगे, दिस इज एमिटर एंड दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज कलेक्टर। ओके, सो how many junctions we are having here 2 junctions, this one and this one. What is these name of these junction, this junction names are EB, and what is this EB is, EB is emitter base junction. Okay, and then after what is CB, CB is collector base junction. Okay, so based upon junction, तो junction पे क्या है भाई, N और P टाइप के हैं। तो यहाँ पर जंक्शन में हम लोगों ने समझा है कि जंक्शन में हम लोग बायसिंग कर सकते हैं। ठीक है, जंक्शन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बायसिंग। कितने टाइप की बायसिंग होती है, देयर आर 2 टाइप ऑफ द बायसिंग, वन इज फॉरवर्ड बायस, अदर वन इज द रिवर्स बायस। तो ऐसा करते हैं हम लोग सब पे सब करके देखते हैं। तो कुल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इस तरीके से, 2-2 अगर पेयर हैं तो सर कुल 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनेंगे कि नहीं भाई। इसको पहले वाले को फॉरवर्ड किया, दूसरे वाले को फॉरवर्ड किया, फिर पहले वाले को रिवर्स किया, दूसरे वाले को रिवर्स किया, फिर इसको फॉरवर्ड किया, इसको रिवर्स किया, फिर इसको रिवर्स किया, इसको फॉरवर्ड किया। तो इस तरीके से 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो बनाते हैं इसे। सबसे पहला हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, द वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज कि हम लोग यहाँ पर क्या बना दें, चलिए इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया और इसे भी हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस कर दिया। ओके, तो फॉरवर्ड बायस है। फिर हम लोगों ने क्या कहा कि ऐसा है, हम लोग इसे फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं और इसे हम लोग कलेक्टर बेस वाले को रिवर्स बायस कर रहे हैं। फिर मैंने क्या कहा, ऐसा है जस्ट उल्टा करते हैं, इसको हम लोग रिवर्स बायस करते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं। ठीक है ना। और फिर मैंने कहा कि दोनों को ही रिवर्स बायस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो अलग अलग तरीके से बायसिंग होती है, ठीक है, मतलब अब हम लोग अलग अलग जंक्शन की बायसिंग अलग अलग तरीके से करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई बायसिंग, तो बायसिंग सर वोल्टेज लगा के करेंगे। एमिटर बेस पर कुछ वोल्टेज लगाएंगे, ऐसा वोल्टेज लगाएंगे कि ये फॉरवर्ड बायस में रहे, और कलेक्टर बेस पर ऐसा वोल्टेज लगाएंगे कि ये भी फॉरवर्ड बायस में रहे। तो जब दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे तो इस तरीके से पहला कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर ऐसा कर सकते हैं कि ये पहला वाला जो एमिटर बेस जंक्शन है वो किस में रहे, वो फॉरवर्ड बायस में रहे। ठीक है ना, और दूसरा वाला किस में चला जाए, रिवर्स बायस में चला जाए।
ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई? अगर आपको इसको करना होगा, यू विल अप्लाई सिंपली हियर रेजिस्टेंस एंड बैटरी, and by changing these values, by resistance and by changing the values of resistance and battery, you can simply control the biasing. You can simply control the biasing, that in which kind of the biasing this particular junction will remain. This emitter based junction may be in forward bias, may be in reverse bias, by simply changing these voltages or the polarities of these voltages. Okay, तो या तो पोलैरिटी आप चेंज कर दीजिए भाई, कोई बहुत विशेष दिक्कत आ रही है तो आप पोलैरिटी चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये एमिटर बेस जंक्शन हो गया, और ये आपका हो गया क्या, कलेक्टर बेस जंक्शन हो गया। आप किस तरीके से कर सकते हो ये भी आपको दिख गया, ठीक है। ये पीएनपी के लिए दिखाया है, तो आप ऐसे एनपीएन के लिए भी कर सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से बेस्ड अपॉन जंक्शन बायसिंग ट्रांजिस्टर कैन बी ऑपरेटेड इन 4 डिफरेंट मोड्स। Based upon junction biasing, transistor can be operated in 4 different modes. Okay, based upon junction biasing, transistor can be operated in 4 different modes. Okay, so this is mode of operation. बहुत ध्यान देना है, दो चीजें आएंगी, एक आएगा कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा आएगा मोड ऑफ ऑपरेशन। तो देयर आर 4 काइंड ऑफ द मोड ऑफ ऑपरेशन, और 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। जब कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी ये फिलहाल मोड ऑफ ऑपरेशन बता रहे हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन। जब दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, देन दिस पर्टिकुलर मोड ऑफ ऑपरेशन विल बी कॉल्ड सैचुरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। फिर दूसरा आता है कि पहला फॉरवर्ड है, दूसरा रिवर्स है, दिस विल बी कॉल्ड एक्टिव मोड। एंड एक्टिव में भी कौन सा एक्टिव? फॉरवर्ड एक्टिव। एक्टिव में भी कौन सा एक्टिव? फॉरवर्ड एक्टिव। और फिर जब पहला रिवर्स हो गया, दूसरा फॉरवर्ड हो गया, तो ये क्या आ जाएगा? रिवर्स एक्टिव। ओके, और जब दोनों के दोनों रिवर्स बायस हो गए तो इस तरीके से कट ऑफ। So how many modes of operation we are having? We are having 4 modes of operation. Number 1 is saturation, number 2 is forward active, number 3 is reverse active, and number 4 is cut off kind of the operation. Okay, so in saturation both of the junction will be forward bias, means emitter based junction and collector based junction, both of these junctions will be forward bias. Then after in forward active mode, there will be emitter based junction will be in forward bias and collector based junction will be in reverse bias. In reverse active mode, emitter based junction will be reverse bias and collector based junction will be forward bias. In cutoff mode, both of these will be in reverse bias. So what are these? What are the applications of these modes? Where means कब कौन सा मोड लगाना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कब कौन सा मोड लगेगा, कौन सा एप्लीकेशन हमें करना होगा तब जाके ये मोड लगेगा, कौन सा एप्लीकेशन नहीं करना होगा तो फिर दूसरा मोड लगेगा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हैं, ओके, इस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर क्या है? सैचुरेशन मोड है, ओके। तो सैचुरेशन मोड में ये जो होता है ये क्लोज्ड स्विच की तरह काम करता है। व्हाट इज एप्लीकेशन? एप्लीकेशन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। डेफिनेटली है कि इससे कोई न कोई क्विज में क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। क्लोज्ड स्विच, ठीक, ये मोड ऑफ ऑपरेशन है। हाउ मेनी मोड ऑफ द ऑपरेशन बीजेटी कैन वर्क? देयर आर 4 डिफरेंट मोड्स। कैसे काम करता है जंक्शन और क्या एप्लीकेशन है? सो दिस वन इज क्लोज स्विच। फॉरवर्ड एक्टिव में भाई ये कैसे काम करता है? एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, ठीक है ना। हाई गेन एम्पलीफायर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाता है? रिवर्स एक्टिव में एम्पलीफायर की तरह अभी भी काम करेगा, बट जो गेन होगा ना वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। एंड कट ऑफ में क्या होगा भाई? कट ऑफ में ओपन स्विच, मतलब कुछ भी फ्लो नहीं करेगा, ओपन स्विच। सो दिस विल बी कट ऑफ मोड, ओके। इन कट ऑफ मोड द डिवाइस विल वर्क इन एज ओपन स्विच, ओके। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़े? ओके, ठीक। अब हम लोग आते हैं
कि भाई ये करंट वाला जो रिलेशनशिप होता है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हो वर्किंग ऑफ बीजेटी, वर्किंग ऑफ बीजेटी। तो वर्किंग ऑफ बीजेटी, तो अब तो ऐसे पूछेगा नहीं कि राइट डाउन वर्किंग ऑफ बीजेटी, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ बीजेटी कैसे काम करता है इसको समझिए, ओके। सो किस टाइप का ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, हम लोगों ने लिया हुआ है यहाँ पर NPN टाइप ऑफ द ट्रांजिस्टर, ओके। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो वर्किंग ऑफ बीजेटी आपको लिखना नहीं है लेकिन समझना है, ठीक है। और समझने के बाद इससे जो कंक्लूजन है उसको ड्रॉ करना है और उस चीज़ को समझ करके फिर समझना है कि अच्छा ठीक है इस तरीके से सारी चीज़ें होंगी और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं वो आपको समझना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ बीजेटी। आपको ट्रांजिस्टर कौन सा दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको ट्रांजिस्टर जो दिख रहा है दैट इज NPN टाइप ऑफ द ट्रांजिस्टर। दिस पर्टिकुलर लेयर इज एमिटर लेयर, दिस पर्टिकुलर लेयर is base layer, and this particular layer is collector layer. So we are having 3 layers here. One is emitter, another one is base, and another one and last one is the collector layer. Okay. So आप देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक तरीके से बायसिंग किया हुआ है। देखिए बेस और एमिटर जंक्शन को ये फॉरवर्ड बायस में सेट करने के लिए क्या किया हुआ है, बेस से एमिटर जंक्शन को ये फॉरवर्ड बायस को सेट करने के लिए ये बताइए आपका बेस किस टाइप का है, P टाइप का है, और एमिटर क्या है वो N टाइप है। अच्छा हम जो नॉर्मल जो हम लोग पढ़ेंगे भी वो फॉरवर्ड एक्टिव मोड में ही पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि बीजेटी का काम मेनली एम्प्लीफिकेशन होता है। क्लोज्ड स्विच और ओपन स्विच तो भैया डायोड भी कर रहा था, ठीक है। वाई वी नीड बीजेटी व्हेन वी वर हैविंग डायोड? सो इन बीजेटी we can do AC signal amplification, we can amplify current as well as voltage both, okay। so इसलिए हम लोग बीजेटी को यूज करते हैं, ठीक है। नहीं तो क्लोज स्विच और ओपन स्विच की तरह तो डायोड भी काम कर रहा था, तो we shouldn't need any kind of the such device, why we should use it, okay। so this is the reason behind it। so अगर आप एम्पलीफायर की तरह से काम करना है तो भाई हम कोई रिवर्स एक्टिव में क्यों काम कराएगा भाई, ठीक है। हम भी फॉरवर्ड एक्टिव में ही काम कराएंगे। मीन्स फॉरवर्ड एक्टिव में काम कराने के लिए क्या करना होगा, अभी हम लोगों ने मोड ऑफ ऑपरेशन पढ़े तो उसमें फॉरवर्ड एक्टिव में सबसे पहला जो मोड ऑफ ऑपरेशन था वो तो सैचुरेशन था, दूसरा वाला जो था वो फॉरवर्ड एक्टिव था। फॉरवर्ड एक्टिव में एमिटर बेस जंक्शन कौन सा था, फॉरवर्ड बायस था। कलेक्टर बेस जंक्शन क्या था, कलेक्टर बेस जंक्शन वाज रिवर्स बायस, ओके। सो एमिटर बेस जंक्शन क्या था आपका, फॉरवर्ड बायस था। कलेक्टर बेस जंक्शन बताइए आपका क्या था, रिवर्स बायस था, ठीक। सो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि एमिटर बेस जंक्शन जो था दैट वाज फॉरवर्ड बायस, ओके। एंड फिर कलेक्टर बेस जंक्शन जो होगा वो रिवर्स बायस होगा। क्यों ऐसा करेंगे भाई, हम लोग इसे फॉरवर्ड एक्टिव मोड में काम कराना चाहते हैं। वी वांट दिस डिवाइस टू वर्क इन फॉरवर्ड एक्टिव मोड, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस, ओके, ठीक है। तो फॉरवर्ड एक्टिव मोड में भाई काम कराना चाहते हैं, ओके। ये देखिए ये फॉरवर्ड एक्टिव मोड में आपका यहाँ से जो आपका होगा मतलब ये वाला फॉरवर्ड बायस रहेगा। तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए हम लोगों ने बी वाला जो कि P टाइप ऑफ है, ये डिवाइस कौन सा है P, तो P वाले पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाया और N वाले पे नेगेटिव लगा दिया, ठीक। और यहाँ पर देखिए उल्टा करना है, इसको रिवर्स बायस में करना है, मतलब N वाले पे पॉजिटिव लगा देंगे और P वाले पे नेगेटिव लगा देंगे। तो इसलिए देखिए बैटरी इस तरीके से सेट किया हुआ है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इस तरीके से बैटरी सेट करके, बैटरी के वोल्टेज सेट करके हम लोग बीजेटी के जो जंक्शन हैं उनकी बायसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और उस तरीके से चूंकि हमें इस डिवाइस को जो मोड ऑफ ऑपरेशन रखना है वो फॉरवर्ड एक्टिव रखना है, इसलिए हम लोग एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में ही रखेंगे, ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद हम लोग ये समझ लिए कि जंक्शन किस टाइप से है, ठीक है। और ये भी हमें समझ में आ गया कि ये फॉरवर्ड बायस जंक्शन है, ठीक है। तो जब फॉरवर्ड बायस जंक्शन है, ठीक है, तो क्या होगा फॉरवर्ड बायस जंक्शन में, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के नाते करंट फ्लो करती है। मीन्स इन फॉरवर्ड बायस करंट विल फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मीन्स अगर वोल्टेज इस तरीके से लगेगा सो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहाँ से चलते हुए वो एक तरीके से इस पर पहुँचेंगे, ठीक है, बेस पर पहुँचेंगे, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन ढेर सारे यहाँ से चल कर के बेस पे पहुँचे, मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले तो बेस पर पहुँचेंगे, तो बेस पे क्या है, बेस पे होल्स हैं, ठीक है, बेस पे होल्स लगे हुए हैं। तो होल्स में एक आध होल्स तो यहाँ रिकम्बाइन कर जाएंगे, मतलब 2 होल्स तो मान लीजिए यहाँ रिकम्बाइन कर गए और बाकी के 98 यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है, बाकी के 98 यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। इस चीज़ को फिर से समझते हैं
ठीक है। तो अगर हम लोगों ने एज्यूम किया कि 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले, तो 2 जो हैं वो रिकम्बाइन कर जाएंगे बेस पे, ठीक है। तो मान लीजिए बेस पे, सर ये मान लीजिए आपने कहा कि फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले, तो ठीक है, ये तो फॉरवर्ड बायस में था, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के नाते करंट फ्लो करती, तो और भाई यहाँ पर जो था वो करंट भी, अगर आप देखिए तो अगर आपने बायसिंग इस तरीके से किया हुआ था तो करंट भी इधर से इधर फ्लो करना था, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ही फ्लो करता, ठीक है, ओके, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया। लेकिन अब तो यहाँ आ गया ना फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया है पी टाइप में, आपने कहा कि सर 100 फ्री इलेक्ट्रॉन आए, 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स में 2 जो है वो रिकम्बाइन कर देंगे, लेकिन अभी भी 98 फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। वो 98 फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर पे कैसे पहुंच जाएंगे? तो कलेक्टर पे पहुंचने का तरीका ये होगा कि कलेक्टर पे पहुंचने के लिए आप ये देखिए इसकी बायसिंग क्या है, रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में जो करंट फ्लो करती है वो किसके नाते फ्लो करती है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के नाते फ्लो करती है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब पी वाले में जो ये पी से एन जो करंट जाएगी अब होल के नाते नहीं जाएगी, अब किसके नाते जाएगी? बिकॉज पी टाइप का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन के नाते जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर आपने कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं? 98 फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, इसका मतलब वो फटाक से इधर पहुंच जाएंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब समझ में आ गया कि अच्छा हम लोगों ने पहले वाले जंक्शन को फॉरवर्ड बायस क्यों रखा, दूसरे वाले जंक्शन को रिवर्स बायस क्यों रखा। तो पहले वाले जंक्शन को फॉरवर्ड बायस इसलिए रखा ताकि एमिटर से बेस तक आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो बेस पे आके ट्रैप हो जाए, और जब बेस पे आके ट्रैप हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो अब क्या होगा? अब वो जो बेस पे आके फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हो गए हैं, अब वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चूंकि रिवर्स बायस में है अगला जंक्शन, तो अपने आप आराम से नेक्स्ट उसमें चले जाएंगे, मींस दे विल बी पास टू द कलेक्टर। ओके, तो इस तरीके से वो कलेक्टर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर जो करंट होगी इसके नाते, चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं तो आई इस तरीके से बाहर की तरफ आती हुई होगी, ठीक है ना। बेस देखिए यहाँ पर रिकम्बाइन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, तो ये आई बी इधर की तरफ होगी, और आई सी जो है वो इस तरीके से यहाँ पे यहाँ की तरफ होगी, ठीक है, ओके। अगर आप ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो जो भी आपका एमिटर से करंट निकलेगा आई ई, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? दैट विल बी इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, ठीक है। जैसे 100 इलेक्ट्रॉन निकले तो उसमें से 2 जो हैं आपके बेस पे रिकम्बाइन हो गए, और बाकी जो बचे आपके वो किस पे चले गए? वो बाकी बचे जो आपके चले गए वो आपके चले गए कलेक्टर पे। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप यहाँ पर होल्ड करती है। ये रिलेशनशिप क्या है भाई? ये रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप इज व्हाट? दिस रिलेशनशिप इज आई ई, दैट इज एमिटर करंट, आई ई दैट इज एमिटर करंट विल बी इक्वल टू, एमिटर करंट विल बी इक्वल टू व्हाट? बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। एमिटर करंट विल बी इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ओके। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया। अब जी जी, ये बेस में सर होल जब होल रहते हैं तो सर इधर से जब इलेक्ट्रॉन आएगा रिकम्बाइन हो जाएंगे, तो इस समय ऐसा आएगा सर पूरा होल रिकम्बाइन हो जाएगा ना, तो सर उस समय सर ये कैसे मतलब करंट का फ्लो चालू कैसे रहेगा? एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, चूंकि करंट सप्लाई बनी हुई है ना, ये केसीएल यहाँ पे फॉलो अप हो रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एग्जिट कर जा रहे हैं, समझे? तो वो इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अचानक जो है वो होल्स के, क्योंकि हम लोग होल्स जो है वो बनते हैं, ऐसा थोड़ा कि होल्स उसके अंदर 100 होल्स हैं धीरे धीरे लीक करके खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। होल्स हम बनाते हैं वोल्टेज अप्लाई करके, करंट अप, तो अगर वो होल कहीं से निकला तो ऑब्वियसली वो होल जो बना होगा वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन के नाते ही बना होगा। एक फ्री इलेक्ट्रॉन जंप करके गया होगा तो उसके नाते होल बना होगा, ठीक है। डोपिंग एक बार हो जाएगी तो फिर वो फिक्स है कितना नंबर ऑफ होल्स रहेगा, ठीक, समझ गए? और कुछ? ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, कॉन्फ़िगरेशन। तो मोड अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग आते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 1 इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है? आप अगर देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब
आप जाते हो मोबाइल फ़ोन में तो देखते हो कि भाई कैसा क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या कॉन्फ़िगरेशन मतलब रैम कितनी है, रोम कितना है, क्या है, किस का कैमरा है, कैसे कनेक्टेड है, ठीक है ना। एंड मोड ऑफ ऑपरेशन मतलब फ्लाइट मोड में रखे हो, स्विच ऑफ रखे हो, डेटा मोड में रखे हो, किस मोड में रखे हो, तो ये बात समझ में आ गई। मतलब ये है कि कॉन्फ़िगरेशन मतलब कनेक्शन कैसा रहेगा, ठीक है, मतलब सर्किटरी का कनेक्शन कैसा रहेगा। और मोड ऑफ ऑपरेशन मतलब अब सर्किट ऑन है, ठीक है, तो उसे हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। हम उसका यूज एज स्विच करना चाहते हैं, हम उसका यूज एज एम्पलीफायर करना चाहते हैं, हम उसका यूज एज क्लोज स्विच करना चाहते हैं, हम उसका यूज एज ओपन स्विच करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। तो बाई कोरिलेटिंग दिस यू कैन जज दीज थिंग्स कि ओके ठीक है सर ये मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं, ये 4 होते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये कॉमन एमिटर वाला कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मतलब किस किस तरीके से कनेक्शन है, ओके। तो कॉन्फ़िगरेशन आता है कॉमन एमिटर, ठीक है ना। कॉमन एमिटर मतलब देखिए कनेक्शन होगा, ऑब्वियसली एक जगह हम लोग इनपुट देंगे और दूसरी जगह से हम लोग आउटपुट लेंगे, ठीक है। तो अब अगर हमें कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो कॉमन एमिटर में देखिए आप 3 टर्मिनल डिवाइस बनाओगे, दिस विल बी कॉल्ड बेस, ओके। ये एमिटर नीचे आ जाएगा और कलेक्टर ऊपर चला जाएगा। क्यों ऐसा बना रहे हैं, क्योंकि अब हमें इनपुट और आउटपुट पे जो डिफाइन करना है, ये देखिए ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। इसमें एमिटर कॉमन रहेगा, एक चीज़ तो कॉमन लेनी पड़ेगी ना, दोनों में कॉमन रहे। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, एमिटर को कॉमन लिया, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन विल बी कॉल्ड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन व्हेन एमिटर इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल, ओके। तो इनपुट जो है वो यहाँ अप्लाई होगा और आउटपुट जो है वो हम लोग यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो इनपुट जो होगा, इनपुट पे जो चीज़ें डिफाइन होंगी वो कौन सा होगा, VBE। VBE मीन्स बेस टू एमिटर वोल्टेज एंड IB दैट विल बी बेस करंट, ओके। और यहाँ पर बताइए क्या होगा, प्लस माइनस VCE, भाई VCE दैट विल बी आउटपुट वोल्टेज। देखिए आउटपुट वोल्टेज आप कहाँ से लोगे, आप कलेक्टर से लेकर के एमिटर के बीच में लोगे, तो VCE कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज दैट विल बी आउटपुट वोल्टेज। एंड IC विल बी आउटपुट करंट। तो इस तरीके से ये जो पैरामीटर्स हैं आपके वो डिफाइन होंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका कि आप ये जो इनपुट पैरामीटर है दैट इज़ VBE बिकॉज बेस से एमिटर की तरफ आप वोल्टेज देख रहे हो, और IB इज़ करंट, और यहाँ पर जो वोल्टेज देख रहे हो वो VCE दैट इज़ कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज देख रहे हो। अच्छा, तो इस पे अगर हम लोग सर करंट गेन कितना होगा, गेन मतलब आउटपुट बाई इनपुट कितना आ रहा है, तो अगर करंट गेन अगर आप देखोगे गेन, तो आउटपुट करंट बताइए क्या है, IC है, और इनपुट करंट बताइए क्या है, IB है। तो IC बाई IB दिस विल बी करंट गेन। बात आ गई समझ में। तो किस केस में करंट गेन है, दिस इज DC करंट गेन, DC करंट गेन इन कॉमन एमिटर, DC करंट गेन इन कॉमन एमिटर, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज अल्फा। This is represented as alpha. Alpha is what? Alpha is a DC current gain in common emitter configuration. ओके, और कॉमन एमिटर बनाया कैसे, ऐसे बनाया। अच्छा सर अगर आप इसको थोड़ा सिंबल के फॉर्म में बना दीजिए, ये तो आपने सीधे सीधे डिवाइस बना दी, सिंबल के फॉर्म में बना दीजिए। अच्छा तो वो ठीक है, ये रहा BJT एमिटर वाला, एरो वाला एमिटर हो गया, ठीक है ना। अच्छा और ये हो गया आपका, ये हो गया बेस टू एमिटर, और ये हो गया आपका कलेक्टर टू एमिटर। तो ये आपका हो जाएगा VBE and IB, this will be what, this will be input parameters, and IC and VCE, this will be output parameters. So this will represent alpha. Okay, अब हम लोग आते हैं, ओके क्लियर है। अब इस तरीके से कॉमन बेस अगर आप बनाना चाहिए, अब इस तरीके से अगर आप कॉमन बेस बनाना चाहिए तो कॉमन बेस में क्या होगा, कॉमन बेस वाले कॉन्फ़िगरेशन में बताइए क्या होगा। तो कॉमन बेस वाले कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखोगे तो बेस वाला कॉमन रहेगा, तो बेस वाला कॉमन रहेगा मतलब इस तरीके से रहेगा सर, ये एमिटर वाला ले लिया हम लोगों ने, ये एमिटर हो गया, ये बेस हो गया, एंड दिस वन इज कलेक्टर, ठीक है ना। ये एमिटर और बेस के बीच में हम लोग यहाँ पर इनपुट ले लेंगे। सो एमिटर इनपुट विल बी टेकन बिटवीन एमिटर एंड बेस, एंड आउटपुट विल बी टेकन बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। सो यहाँ पर इनपुट आपका डिफाइन होगा एमिटर और बेस के बीच में, और कलेक्टर और बेस के बीच में आपका आउटपुट डिफाइन होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जो पैरामीटर होगा बताइए वो कैसे डिफाइन होगा, VEB, दैट विल बी इनपुट वोल्टेज, एंड IE that will be input current. Okay, and now here IC that will be output current. Okay, this will be output current, and VCB that will be what, that will be output voltage. Okay, so this will be output voltage. एक सेकेंड, ये जो IC बाई IB हम लोग ने डिफाइन किया, ये अल्फा नहीं बीटा होता है। एक सेकेंड, हाँ इसमें हाँ, ये IC बाई IB जो डिफाइन होता है, दिस IC बाई IB इज रिप्रेजेंटेड एज बीटा, एंड सो व्हाट इज बीटा? बीटा इज DC करंट गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट इज बीटा? बीटा इज DC करंट गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. ओके, और यहाँ पर जो डिफाइन होता है कॉमन बेस वाले में, कॉमन बेस वाले में देखिए कितना आएगा. कॉमन बेस वाले में अगर आप देखिए तो करंट गेन बताइए क्या आएगा, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट. तो करंट गेन इन कॉमन बेस, सो दिस विल बी IC बाई IE. तो IC बाई IE बताइए क्या आ जाएगा, IC बाई IE आएगा अल्फा. तो जरा वैल्यू बताइए IC बाई IE की क्या आएगी, 98/100 अगर आप देख रहे हैं तो क्या आएगी, लगभग 0.98 आएगी. ठीक है ना. तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती भी है 0.98 से लेकर के 0.995 तक. मतलब इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही होगी. कैसे पता? क्योंकि सर कभी भी कलेक्टर करंट तो एमिटर करंट से ज़्यादा हो नहीं जाएगी. ठीक है ना, और इतनी भी ज़्यादा कम नहीं होगी. तो इसकी जो वैल्यू की रेंज होती है वो 0.98 से लेकर के 0.995 तक होती है. अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं जो बीटा की वैल्यू होती है ना वो बहुत हाई होती है. तो बीटा की वैल्यू बताइए यहाँ पर क्या आएगी, IC दैट इज इक्वल्स टू 98/2, सो दिस विल बी 49. सो इसकी जो वैल्यू होती है वो 49 से लेकर के 499 तक होती है. सो बीटा की वैल्यू होती है 49 से लेकर 499 तक. ओके, सो दिस इज बीटा. अब इसका अगर आप सर्किट बनाना चाहोगे तो सर्किट बताइए आप इसका कैसे बनाओगे. सर्किट बनाने के लिए आपको देखिए सर्किट में अगर आप सर्किट बनाना चाहोगे तो सर्किट बताइए आप इसका कैसे बनाओगे. सर्किट बनाने के लिए आप इस तरीके से, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. ओके, ये दिस वन. ओके, सो दिस वन इज एमिटर टर्मिनल, दिस वन इज बेस टर्मिनल, एंड दिस वन इज कलेक्टर टर्मिनल. ओके, सो अब आपका यहाँ पर आपका हो गया प्लस माइनस V. ये कलेक्टर है, या एरो यहाँ नहीं रहेगा, एरो यहाँ रहेगा. जस्ट रब इट. ओके, सो दिस विल बी VEB. ओके, एंड IB, और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा प्लस माइनस VCB. ओके, IC. ओके, सो दिस वन इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. ओके, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो DC करंट गेन डिफाइन होता है दैट इज अल्फा, एंड दैट्स वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 0.98 to 0.998. ओके, इस तरीके से. अब होता है कॉमन, इसके बाद आ जाता है आपका कॉमन कलेक्टर. तो कॉमन कलेक्टर में देखिए क्या होगा, व्हाट विल बी इन कॉमन कलेक्टर. तो कॉमन कलेक्टर में CC कॉन्फ़िगरेशन होता है, एंड इन कॉमन कलेक्टर here is collector, this one is base, and this one is emitter. तो बेस और कलेक्टर के बीच में, बेस और कलेक्टर के बीच में आपका इनपुट डिफाइन होता है. ओके, और आपका एमिटर और कलेक्टर के बीच में जो होता है वो आउटपुट डिफाइन होता है. सो इनपुट इज डिफाइंड बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, एंड आउटपुट इज डिफाइंड बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर. ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो डिफाइन होता है दैट इज VBC, एंड जो इनपुट करंट डिफाइन होता है दैट इज IB. ठीक है, और यहाँ पर जो आउटपुट करंट डिफाइन होता है दैट इज इक्वल्स टू IE. ओके, और जो यहाँ पर जो वोल्टेज डिफाइन होता है दैट इज VBC. ठीक है, अगर आप इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन करना चाहेंगे तो ये आपका हो गया एमिटर, बेस, कलेक्टर. ठीक है, और ये आपका हो गया इस तरीके से आपका सर्किट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा. यहाँ पर जो आप रिलेशनशिप निकालोगे वो IE, जो करंट गेन निकालोगे वो IE और IB के बीच में होगा. सो IE डिवाइडेड बाई IB, सो IE डिवाइडेड बाई IB दैट विल बी गामा.
दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज गामा। तो अगर आप देखिए इसको कितनी वैल्यू आ रही है, आई की वैल्यू हो गई 100 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बी 50। ओके, तो इस तरीके से अगर हम लोग सारे का सारा रिलेशनशिप निकालना चाहें कि क्या क्या होता है, तो अगर हम लोग देखें अल्फा इज इक्वल्स टू, बताइए क्या होता है। अल्फा जो डिफाइन होता है वो कॉमन एमिटर में डिफाइन होता है। कॉमन एमिटर में होता है आई सी बाई आई बी। ओके, बीटा इज इक्वल्स टू, बताइए क्या होता है, सॉरी आई सी बाई आई ई होता है। ओके, बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बीटा इज इक्वल्स टू होता है आई सी बाई आई ई, एंड गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, गामा इज इक्वल्स टू होता है आई ई बाई आई बी। Okay, so if we want to find out relationship between alpha, beta and gamma, so we can write down IE is equals to IC plus IB. Okay, just divide it with IB. So IE by IB, and this will become IC by IB, and this will become plus 1. Okay, so IE by IB, or if you want to get relationship between alpha and beta, so do one thing, divide it with IE, don't divide it with it, because आपको रिलेशनशिप जो चाहिए वो अल्फा और बीटा में चाहिए। तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग IE से ही पूरे को डिवाइड कर देते हैं। तो IE बाई IE आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, IC बाई IE आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, IB बाई IE आ जाएगा। किसी से भी कर सकते हैं। ओके, सो नाउ दिस विल बिकम 1 IC बाई IE, बताइए क्या आ जाएगा, IC बाई IE, सो दिस विल बिकम अल्फा प्लस IB बाई IE। सो IB बाई IE दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई गामा। सो यहाँ पर हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 बाई गामा। ओके, बिकॉज ये 1 बाई गामा है, तो गामा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो इस तरीके से गामा की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू गामा। अच्छा, बीटा इज इक्वल्स टू, बताइए क्या दिया हुआ है, बीटा इज इक्वल्स टू हम लोग ने दे रखा है IC बाई IB। बीटा इज इक्वल्स टू दे रखा है IC बाई IB। ओके, सो IC कैन बी रिटन एज IE माइनस IB डिवाइडेड बाई IB। ओके, सो IC बाई IB विल बिकम गामा, गामा माइनस 1। तो इस तरीके से आ गया गामा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा एंड बीटा इज इक्वल्स टू गामा माइनस 1। ओके, अल्फा इज इक्वल्स टू, एक तरीके से अगर हम लोग डिफाइन करें तो अल्फा इज इक्वल्स टू, बताइए क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू होता है IC बाई IE। ओके, सो दिस विल बिकम IC बाई हाउ मच, IE इज इक्वल्स टू IC प्लस IB। ओके, जस्ट डिवाइड बोथ साइड विद IB, IC बाई IB डिवाइडेड बाई 1 प्लस IC बाई IB। okay, so how much it will become, alpha will become, alpha is equals to IC by IB, that is equals to beta 1 plus beta, so this will become alpha। okay, so इस तरीके से जो रिलेशनशिप आ गई हम लोगों की वो कुछ इस तरीके से आ गई। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा। ओके, गामा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बीटा प्लस 1 आ जाएगा। गामा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, गामा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ओके, वैसे अगर आप अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करना चाहोगे तो बीटा इज इक्वल्स टू बताइए आएगा अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। देख लेते हैं इसको भी डिराइव करके देख लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, बीटा इज इक्वल्स टू होता है IC by IB। okay, so this can be written as IC is equals to IE minus IC, IE minus IC, just divide it
IC by IE divided by IE divided by IE minus IC divided by IE. So now this will become how much? This will become alpha divided by 1 minus alpha. So this will be beta. Okay, so this is a basic relationship between alpha, beta and gamma. Okay, any doubt? जी सर। तो इससे पहले एक ग्राफ, दो ग्राफ बनाया था, तो दो ग्राफ तो अभी मैंने उसको समझाया कहाँ? समझा देंगे। अब आता है लीकेज करंट। लीकेज करंट, सो देयर आर टू काइंड ऑफ द लीकेज करंट। ठीक है, एक होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में और एक होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो एक होता है ICBO। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में देखिए जो आपका एमिटर होता है वो एक तरीके से ये होता है, एक सेकेंड, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देखा। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में एमिटर जो होता है वो आपका इनपुट पे होता है और इस तरीके से आपका कलेक्टर होता है, इस तरीके से आपका ये। तो कैसे डिफाइन करते हैं ICBO को? ICBO को डिफाइन करने के लिए इट इज़ कलेक्टर टू बेस करंट, कलेक्टर टू बेस करंट, इट इज करंट फ्रॉम कलेक्टर टू बेस व्हेन एमिटर इज ओपन। मतलब एमिटर पे कोई भी वोल्टेज नहीं लगेगा, कोई भी करंट नहीं लगेगा। तो इस तरीके से व्हेन एमिटर इज ओपन, सो इट इज डिफाइंड इन ICBO। ICBO एक तरीके का लीकेज करंट होता है। इट इज डिफाइंड इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इट इज ऑलवेज डिफाइंड इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इट इज करंट फ्रॉम कलेक्टर टू बेस व्हेन एमिटर इज ओपन। ओपन कौन रहेगा? एमिटर, when emitter is open. Okay, so it is a kind of leakage current and defined in common base configuration and it is collector to base current when emitter is open. Okay, फिर उसी तरीके से ICEO डिफाइन होता है। ICEO जो डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। ओके, और ये होता है कलेक्टर टू एमिटर करंट। इट इज करंट फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर व्हेन बेस इज ओपन। तो ओपन क्या रहेगा? बेस। सो इट इज डिफाइंड इन कलेक्टर टू, इट इज डिफाइंड in CE configuration and it is collector to emitter current when which is open? Base is open. Okay. When base is open, so it is defined as collector to emitter current when base is open. Okay, so there is a relationship between ICBO and ICEO. ICEO that is equals to बीटा प्लस 1 ICBO। ये आप एकदम से इम्पॉर्टेंट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन ICEO एंड ICBO। सो ICEO इज लीकेज करंट डिफाइंड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ICBO इज लीकेज करंट डिफाइंड इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इट इज डिफाइंड इन
common emitter configuration when collector to emitter current when base is open, it is defined as collector to base current when emitter is open. Oh, so ICU that is equals to beta plus 1 into ICBO. ओके, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ICBO दैट इज लीकेज करंट है ये, ICBO एंड ICEO जो अभी डिफाइन किया। फिर आता है बायसिंग। तो बायसिंग क्यों जरूरी है, ठीक है, बायसिंग हम लोग क्यों करते हैं, इस चीज़ को समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना होगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी ये देखिए, तो एक उसके लिए सबसे पहले हम एक कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करेंगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, आप एज्यूम कर सकते हैं किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज अ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ये आपका बेस रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये कलेक्टर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और एमिटर पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका इनपुट वोल्टेज हम लोग बायसिंग के लिए लगा रहे हैं VBB, और यहाँ पर VCC इस टर्मिनल पर लगा रहे हैं बायसिंग के लिए वोल्टेज। और ये जो VI है दैट इज इनपुट वोल्टेज, ये AC भी हो सकता है, DC भी हो सकता है, कैसा भी वोल्टेज हो सकता है। नॉर्मली चूँकि एम्पलीफिकेशन करना है तो AC वोल्टेज ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा VBB, RB, RC और VCC है, ये मिलके एक बायसिंग सर्किट बनाता है, और बायसिंग सर्किट पे फिर आप इनपुट वोल्टेज लगाते हो। जस्ट समझने की बात यही है कि आपके मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो एक तरीके से मोबाइल फ़ोन को ऑपरेशनल बनाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब तक उस पर सिग्नल नहीं आएगा तब तक मोबाइल फ़ोन पे आपकी कॉल नहीं आएगी, ठीक है। तो जो सिग्नल आता है दैट इज़ इनपुट वोल्टेज, और फिर उस सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है। तो सिग्नल एम्पलीफाई कब होगा, जब आपका मोबाइल फ़ोन ऑन रहेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बायसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी BJT आपका प्रॉपरली काम करे, एज एम्पलीफायर प्रॉपरली काम करे, इसके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होगी पहले यही होगी कि BJT आपका फॉरवर्ड एक्टिव मोड में सेट होना चाहिए, ठीक है। BJT मस्ट बी सेट इन फॉरवर्ड एक्टिव मोड, ठीक है। तो फॉरवर्ड एक्टिव मोड में आपका BJT सेट होगा, तभी आपका जो भी आपका एक तरीके से वर्किंग होगा वो प्रॉपर होगा, ठीक है। तो फिर जब इस तरीके का आप देखते हो BJT, तो इसमें दो तरीके का कॉन्फ़िगरेशन बनता है, दो तरीके का सर्किटरी बनता है। एक बनता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और एक बनता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमें डिफाइन करना होगा तो किसके किसके बीच में डिफाइन करेंगे, IB और VBE। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच में डिफाइन करेंगे, IB और VBE के बीच में डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो IB और VBE के बीच में डिफाइन करते हैं, और यहाँ पर जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होगा वो किसके किसके बीच में डिफाइन होगा, IC और VCE। सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिफाइन होता है वो IB और VBE के बीच में डिफाइन होता है, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिफाइन होता है वो IC और VCE के बीच में डिफाइन होता है। तो एक तरीके से आप देखिए आपका ये जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफाइन कैसे होगा, IB और VBE के बीच में, एक सेकेंड, IB और VBE के बीच में डिफाइन होगा, ठीक है। IB और VBE के बीच में डिफाइन होगा। तो अगर आप देखिए तो आप एक जो X वाली एक्सिस होगी उस पर आप बनाओगे IB, ठीक है, और ये वाली जो एक्सिस होगी आप इस पर बनाओगे क्या, VBE, ठीक है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी वो उसके लिए हम लोगों को कुछ चेंजेस भी करने होंगे। तो यहाँ पर अलग अलग वैल्यू ऑफ VCE के लिए डिफाइन होगा। So input characteristics is defined between input parameters. Input parameters are IB and VBE for different values of VCE. For different values of VCE, ठीक है। तो VCE की different वैल्यूज हम लोग लगाएंगे यहाँ पर,
पहले VCE की वैल्यू को कुछ सेट करेंगे, फिर उसके बाद और बढ़ाएंगे, फिर और बढ़ाएंगे, तो इस तरीके से फिर हम लोग देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जब ये किया गया तो ये देखा गया कि ये जो आपका VCE है, ठीक है, जो VCE है, ठीक है ना, अगर VCE इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट है, अगर VCE इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट है तो यहाँ पर VCE इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट के लिए एक तरीके से डायोड की तरह से ही आएगा। ठीक है ना, ये लगभग 0.5 वोल्ट पर स्टार्ट होगा। ठीक है ना, और अगर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से अगर हम लोग वोल्टेजेस बढ़ाते हैं, मतलब VCE के वोल्टेज को फिर हम लोग और बढ़ाते हैं, कुछ और बढ़ाया, इस तरीके से जैसे जैसे हम लोग VCE के वोल्टेजेस को बढ़ाते जाएंगे, ये डायोड का ये जो ग्राफ है वो इधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ जो है वो इधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। ठीक, तो फॉर VCE इज इक्वल्स टू, आप VCE इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट ले लीजिए, फॉर VCE इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट ले लीजिए। इस तरीके से जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे ग्राफ जो है वो इस तरीके से शिफ्ट होता जाएगा। तो किसके किसके बीच में ड्रॉ होता है? सबसे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का कर्व ड्रॉ होता है IB एंड VBE के बीच में। ठीक है ना, जस्ट लाइक एज डायोड काम करता है ये, ठीक, डायोड के कर्व की तरह से काम करता है। और जैसे जैसे हम लोग VCE की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज हम लोग बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे ये जो ग्राफ है ये इधर की तरफ और ज़्यादा शिफ्ट होने लगता है। ठीक है, फिर आते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BJT पे। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BJT जो होगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BJT अगर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लोग बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो किसके किसके बीच में डिफाइन होगा? आउटपुट पैरामीटर दैट इज IC और VCE के बीच में, IC और VCE के बीच में फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IB। तो IC और VCE के बीच में होगा, IC और VCE के बीच में होगा। ठीक है, IC एंड VCE के बीच में होगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IB। यहाँ पर अलग अलग वैल्यू ऑफ IB को लेंगे। ठीक है ना, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IB, यहाँ पर दैट्स वाई BJT इज ऑल्सो कॉल्ड करंट कंट्रोल डिवाइस, बिकॉज इनपुट पर जो कुछ भी आता है फिर वो जो इनपुट पे जो करंट होती है वो आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनती है वो करंट के बेस, इनपुट करंट के बेसिस पे बनती है। दैट्स वाई इट इज, वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो अ करंट कंट्रोल डिवाइस, बिकॉज यहाँ पर जो कंट्रोलिंग हो रही है वो पूरी तरीके से करंट के नाते हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये IB की एक वैल्यू के लिए, फिर जैसे जैसे हम लोग IB की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे ये ग्राफ जो है ये, ठीक है, तो यहाँ पर IB इक्वल्स टू 0 वोल्ट होता है, 0 एम्पियर होता है। ठीक है, ये जो IB होता है वो माइक्रो एम्पियर में होगा, IC जो होगा वो मिली एम्पियर में होगा। ठीक है, बिकॉज IB जो होता है वो बहुत ही माइनॉरिटी करंट होता है, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस होता है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के नाते, दैट्स वाई इट इज़ इन मिली एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर IB की वैल्यू को आप लगभग कहाँ तक बढ़ा देते हो? 100 माइक्रो एम्पियर तक बढ़ा देते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे बढ़ाते जाते हो। ठीक, फिर अलग अलग मोड्स डिफाइन होते हैं, जैसे कि ये जो है एक तरीके से जहाँ पर ये आ रहा है, दिस पर्टिकुलर मोड इज कॉल्ड एज ऑफ सैचुरेशन, और आप इसे कह सकते हो एज। ठीक है ना, एज ऑफ एक्टिव मोड और एज ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, ये जो होता है ये पूरा का पूरा रीजन, दिस पर्टिकुलर रीजन जो कि इसके पहले आता है, ठीक है, जहाँ पर कि ग्राफ पैरेलल नहीं हुआ है उससे पहले का पूरा जो है वो सैचुरेशन कहलाता है, ये पूरा का पूरा कहलाता है सैचुरेशन मोड। ठीक है ना, और ये जहाँ पर ग्राफ पैरेलल हो गया है ये कहलाता है एक्टिव मोड, बिकॉज यहाँ पर, और ये जो जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है ये कहलाता है कट ऑफ। तो इस तरीके से तीनों मोड आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में दिख रहे हैं। ठीक है, ये सैचुरेशन है, सैचुरेशन मतलब आपको पहले बताया क्लोज स्विच की तरह से काम करेगा, मतलब जो करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप होगी वो रेजिस्टेंस की तरह से होगी। तो रेजिस्टेंस की जो रिलेशनशिप होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, तो जहाँ पर भी ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है, इट इज शोइंग अ स्ट्रेट लाइन, वहाँ तक हम लोग कहेंगे कि इट इज़ इन सैचुरेशन मोड। जैसे ही ग्राफ पैरेलल हो गया है एक दूसरे के, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मोड, और जहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है दैट पर्टिकुलर इज कॉल्ड कट ऑफ मोड। तो इस तरीके से आपका BJT के 3 मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं। ठीक है,
3 मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं और तीनों मोड ऑफ ऑपरेशन आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये समझ में आएगा कि इस तरीके से कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आपके 3 मोड ऑफ ऑपरेशन हैं और तीनों मोड ऑफ ऑपरेशन में जो सैचुरेशन वाला होता है वो एज ए क्लोज स्विच कैसे काम करता है, बिकॉज वहाँ पर लीनियर ग्राफ मिलता है, वो प्योर रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। कट ऑफ कॉलम में कोई भी करंट नहीं मिलती है और ये आपको एक्टिव मोड मिलता है। तो एक्टिव मोड में काम करे डिवाइस, एक्टिव मोड में काम करे डिवाइस, उसके लिए क्या चाहिए होगा? उसके लिए आपको चाहिए होगा कि बीजेटी कहीं बीचों बीच यहाँ पर सेट हो जाए, मतलब बीजेटी का जो पॉइंट ऑफ ऑपरेशन है वो यहाँ कहीं बीचों बीच सेट हो जाए। ठीक, दैट इज कॉल्ड क्यू पॉइंट, डीसी पॉइंट ऑफ ऑपरेशन, डीसी पॉइंट ऑफ ऑपरेशन या क्यूसेंट पॉइंट कहते हैं। तो क्यूसेंट पॉइंट बताइए कैसे डिफाइन होगा? आईसी और वीसीई की वैल्यू से डिफाइन होता है और आईसी और वीसीई की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जो बीचों बीच रहे, वो बीचों बीच रहेगी तभी जाकर के आपका एम्पलीफिकेशन सही होगा। दूसरी चीज़, ये बीचों बीच रहे और कोई भी करंट वोल्टेज आने पर ये इधर या फिर इधर बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट ना करे, बहुत ज़्यादा चेंज ना करे। अगर ये इधर और इधर चली जाएगी तो आपका एम्पलीफिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा, आपका जो एम्पलीफायर है वो प्रॉपरली एम्पलीफिकेशन का काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग इस पर्टिकुलर ये जो सर्किट था इसे अगर हम लोग लें और उस सर्किट के बेसिस पर हम लोग देखा था कि ये यहाँ पर आपका RC था, ठीक है, ये आपका RB था, ये आपका इनपुट वोल्टेज था, ये आपका VBB था और ये आपका VCC था। तो DC एनालिसिस सबसे पहले किया जाता है किसी भी ट्रांजिस्टर के एज ए एम्पलीफायर काम कराने के लिए। सबसे पहले हम लोग DC एनालिसिस करते हैं। तो DC एनालिसिस क्या होता है? DC एनालिसिस में ओनली DC सोर्सेज will be connected। सिर्फ और सिर्फ DC सोर्सेज ही कनेक्ट करेंगे, कोई भी AC सोर्स हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, ओनली एंड ओनली DC सोर्सेज विल बी कनेक्टेड। ठीक, तो DC सोर्स हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक, सारे के सारे AC सोर्सेज को हम लोग रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये आपका हो गया ये, ठीक, ये आपका हो गया RB, ओके, और ये आपका हो गया VCC और ये हो गया RC। तो आपने देखिए जो AC हमने लगाया हुआ था ना VI, उसको हम लोगों ने हटा दिया है। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इस DC वाले पर हम लोग KVL लगाएंगे। तो KVL देखिए आप यहाँ पर लगाओगे और इस तरीके से आउटपुट पर लगाओगे। ठीक, तो आउटपुट वाले पे VCC का मतलब अगर ये होता है तो अगर आप VCC का मतलब देखो तो इसका मतलब वहाँ पर VCC वोल्टेज लगा हुआ था। VCC मतलब इस तरीके से आप उसे लिख सकते हो। फॉर सिंप्लीफिकेशन आप इस तरीके से अगर एरो लगा हुआ है, कहीं पॉइंट सोर्स लगा हुआ है तो आप उसे उठा करके 5 वोल्ट लगा दीजिए, VCC लगा दीजिए और दूसरे वाले टर्मिनल को ग्राउंड कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप इसको एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, ये आपका जो करंट है, ठीक है, ये करंट यहाँ पर आपको डिफाइन करना होगा। तो आप और यहाँ पर जो एमिटर करंट होगी दैट विल बी लाइक दिस। ये एमिटर करंट यहाँ की तरफ आएगी, ठीक ना। IC जो होगी वो IC यहाँ की तरफ आएगी और IB इस तरीके से आएगी, इनकमिंग करंट। तो IB इज इक्वल्स टू IC प्लस IE, ठीक है ना। ये जो वोल्टेज है दैट इज इक्वल्स टू VBB। तो अगर आप इनपुट साइड पर अगर आप KVL लगा रहे हैं तो इनपुट साइड पे KVL लगाएंगे तो बताइए क्या आएगा। दिस विल बी माइनस से प्लस और प्लस से माइनस लिखते हैं। माइनस से प्लस इज इक्वल्स टू प्लस से माइनस, ठीक है ना, सॉरी माइनस से प्लस एंड इज इक्वल्स टू प्लस से माइनस। तो माइनस से प्लस गए VBB और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा IB/RB, चूँकि करंट ऐसे फ्लो करिए तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। सो दिस विल बी प्लस टू माइनस, सो दिस विल बी IB/RB। और जो यहाँ पर वोल्टेज आएगा भाई यहाँ से ऐसे चले जाएंगे तो ये वोल्टेज आएगा दैट विल बी VBE प्लस VBE, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आप जब इनपुट साइड पे केवीएल लगाओगे तो इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। वहीं अगर आप आउटपुट साइड पे केवीएल लगा रहे हो, इफ यू अप्लाई केवीएल ऑन द आउटपुट साइड, सो यहाँ पर बताइए क्या मिलेगा। फिर ऐसे यहाँ से स्टार्ट करिए, माइनस से प्लस इज इक्वल्स टू प्लस से माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए माइनस से प्लस आया, दैट इज इक्वल्स टू VCC इज इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ पर बताइए क्या आ जाएगा, प्लस से माइनस, सो प्लस से माइनस हो जाएगा ICRC, ठीक है, ICRC, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा VCE प्लस VCE, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो यही जो एक्सप्रेशन है एक तरीके से ये बनाएगा DC लोड लाइन। ये जो एक्सप्रेशन बनाएगा ये DC लोड लाइन बनाएगा। तो कैसे बनाएगा DC लोड लाइन, इसको देखते हैं, ठीक। जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो किसके किसके बीच में होती है, दैट इज बिटवीन VCE एंड IC, VCE एंड IC के बीच में होती है, ठीक है ना। हम लोग IC इक्वल्स टू अगर 0 पुट कर देते हैं, IC इक्वल्स टू 0 पुट करने पर आपका VCE बताइए क्या आ जाएगा, VCE दैट विल बी इक्वल्स टू VCC। IC इक्वल्स टू 0 पुट करने पर VCE इक्वल्स टू VCC आ जाएगा, मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। IC देखिए यहाँ पर IC की वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया VCC, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। कैसे पता, ये देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये आपका x हो जाएगा, सॉरी दिस वन इज y एंड दिस वन इज x। उल्टा लिख दिया मैंने, ये VCE यहाँ होगा और IC यहाँ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो आएगा, ये जो पॉइंट आएगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट IC इक्वल्स टू 0 एंड VC ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये आपका ये पॉइंट हो गया IC इक्वल्स टू 0 एंड VCE इक्वल्स टू VCC, ठीक। अब दूसरा पॉइंट अगर आप VCE इक्वल्स टू 0 सेट कर दीजिए, VCE इक्वल्स टू 0, तो VCE इक्वल्स टू 0 सेट कर दिया तो IC इक्वल्स टू बताइए क्या आ रहा है, IC इक्वल्स टू आ जाएगा इसमें VCC बाई RC, VCC बाई RC, तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट को अब आप मैच कर दीजिए, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो ये पर्टिकुलर लाइन कहलाएगी, दिस पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड DC लोड लाइन, ये कहलाती है DC लोड लाइन। तो कैसे मिलती है DC लोड लाइन, जो भी आपका सर्किट रहेगा उस सर्किट में आप क्या करोगे, उस सर्किट में आप AC कंपोनेंट को हटा दोगे, केवल और केवल क्या रहने दोगे, केवल और केवल DC कंपोनेंट रहने दोगे। उसका जो आउटपुट साइड होगा उस आउटपुट साइड पर आप क्या लगाओगे, KVL लगाओगे। By applying KVL on output side, you will get expression between IC and VCE, और उस IC और VCE का जो एक्सप्रेशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और वो ही जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर बनेगी, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ग्राफ पर बनेगी, दैट विल रिप्रेजेंट व्हाट DC लोड लाइन, ठीक है। और यही DC लोड लाइन को अगर हम लोग इस वाले ग्राफ पे सुपर इम्पोज कर दें, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ग्राफ है, उसी पर हम ये देखिए कट ऑफ वाला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और जैसे जैसे हम लोग IB की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, इस तरीके से ये इसी पर अगर हम लोग सुपर इम्पोज कर दें तो ये समझ में आएगा कि कहीं जो भी अगर हमें एज ए एम्पलीफायर काम कराना है, तो मैंने कहा है कि वो पैरेलल लाइंस के बीच में होना चाहिए, तो ये कहीं मिड ऑफ एक्टिव रीजन वो काम करना चाहिए, ठीक है। सो ये होता है DC लोड लाइन, और ये मिड ऑफ एक्टिव रीजन में ये इस तरीके से काम करना चाहिए, ताकि जो है आपका ये प्रॉपर एम्पलीफिकेशन कर पाए, ठीक। और BJT एज एन एम्पलीफायर कैसे काम करता है, ठीक है, और फिर उसे हम लोग कैसे यूज़ करके कैसे हम लोग एम्पलीफायर का यूज़ करके हम लोग कैसे हम लोग AC सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग ग्राफिकली देखेंगे, ठीक है। और फिर बायसिंग कैसे कैसे होती है, और बायसिंग के क्या क्या ज़रूरत होता है, और क्यों बायसिंग करते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को देखेंगे, ठीक। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज आप लोगों की कोई क्लास शेड्यूल्ड है इसके बाद? ठीक है, तो मैं बताऊंगा। फिर हम लोग जैसे कि अराउंड 2 PM एक क्लास शेड्यूल कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज BJT हम लोग पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। इसमें आज के वाले टॉपिक में किसी को कोई डाउट है?
तो मैं इसका लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है ना। आप अपनी अटेंडेंस जो है वो चैट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। अपना रोल नंबर चैट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, तो फिर 2 बजे के अराउंड, तो 2 और 2:30 के अराउंड फिर मिलेंगे। ठीक है, ओके। सो आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे बीजेटी। बीजेटी मीन्स बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, सो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, व्हाई इट इज कॉल्ड बाईपोलर? ओके, व्हाई इट करंट बताइए क्या है? आईसी है। और इनपुट करंट बताइए क्या है? आईबी है। तो आईसी बाई आईबी, दिस विल बी करंट अगेन। बात आ गई समझ? तो किस